Assalamu alaikum. This is Dr. Anis, and we are here for the workshop of this data. Everything this is shared with you people, please. These slides are shared with you people. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. So wait a bit. Okay. Data analysis, like we discuss about the data, about the types of the data, about the primary, about the secondary, about the qualitative and about the quantitative. No, the next phase is data analysis, and in data analysis the first thing is we have to study the types of the data. So what are the types of the data? The first type is the primary data, that can be collected by the researcher, by the students, by the academicians, or by any person who is conducting any project. The next thing is the secondary data, that can be a GDP, inflation, etc., and can be gathered from different type of source, like we have discussed in past, from the data stream from S&P Global, from SECP Pakistan, from WDI, and so on. Uh, there are three types of data: time series data, cross-sectional data, and panel data. Time series data is more than 5 year data. Cross-section is the data in which we have to create the difference between T and N, and while in panel data, that will be the combination of both time series and cross-sectional data. We will study this in detail. This is the data which you can see it, that you have GDP, you have the S&P, you have the FDI, you have the inflation. So this is the shape of the data. जो मैंने I have shared with you people in the Excel. So you can see this as well. Then you can see this shape as well. This is also the shape of the data, and in the shape of the in Excels. Then we will discuss about the cross-sectional data. What is the cross-sectional data? What will be the study population of a cross-sectional data? What is GDP? What is GNP? But the Excel sheet I have shared with you people is full of all these information, is full of the data. So we will discuss that as well. Then we will discuss about the regressions and correlations. So before coming to regressions and correlation, what we will discuss about the descriptive analysis, about the mean, median, and mode. What is their importance? Then after defining the mean, median, and mode and their importance, we will discuss about the correlation, how you will do the correlation. And then after correlation, we have to do the regression analysis. You can see the regression line and the blue dots over here. You will easily understand this over there when you will do the analysis of the data. Keeping it very short, we let's go to the data. That what are the benefits of the regression? Why we are doing the descriptive analysis? Why we are doing the correlation? Why we are doing the regression? So uh, please write down, okay, the first thing is the descriptive analysis. Okay, when after collection of the data, the first thing you have to do the descriptive analysis. Okay, then after the descriptive analysis, what you will do, you have to do the correlations. Okay, then after the correlation, you have to do the regression. Okay, so in regression, there are three types of regression. The first one is OLS, ordinary least square. The second one is GLS, and the third one is SLS. Okay,
uh, there are we will discuss about the descriptive, correlation, and regression. And there are three types of regression. One is OLS, GLS, and SLS, जो GMM कहलाता है. That is also called GMM. Okay. Then further we will divide this into further sections like OLS. Then from OLS we will move to GLS, and GLS will be divided into two further regressions. That one will be called as the fixed effect GFX, and the other one will be called random effect GLS. Then from that this one we will go to GMM, and GMM is once again divided into two, 2 SLS and 3 SLS. We will discuss this in detail, but uh, keep in your mind that today you will do three type of analysis. Three type. The first, descriptive analysis. The second one is correlations, and the third one is regression. And for regression, you will study three type of regressions. The first type is OLS. The second one is GLS. The third one is GMM. So you will do analysis for OLS, then you will go to GLS. GLS is the second form of the regression, which will divide it into two, fixed effect GLS and random effect GLS. Then the third will be the GMM, and GMM is also divided into two SLS and three SLS. So keeping it very short and making it very easy for you people, keep in mind three type of analysis: descriptive, correlation, and regressions. So I have shared the Stata software with you, and the dummy data with you people as well. Okay. So before going to make the analysis or do the analysis, what is required, that you should learn the concepts, you should learn the theory of all these things. And for this theory, you have to learn why you are doing the descriptive analysis, then why you are doing the correlation, then why you are doing the regression. So for descriptive analysis, why we are doing the descriptive analysis? Because in descriptive analysis, you are going to do the analysis about the mean, and about the standard deviations, about the minimum, and about the maximum. So what is the benefit of all these things? What is the benefit of mean? What is the benefit of standard deviation? So obviously, this will tell you about the data. If the standard deviation is high, it means that the mean is very away from the mean, means that there is a deviations in the data. What people the experts of research, when they see the standard deviation or mean of any data, they can tell you whether the data is garbage or it is a pure standard data, because from the mean and from the standard deviation you can decide about the data, that the data is very much normal, it is linear, it is very much not autocorrelated, and it is not indigeneity type of the data. So you are doing three type of the analysis: the descriptive, the correlations, and the regression. So we are discussing the first one, the descriptive one. In descriptive one, what you will do: the mean, standard deviation, minimum, and maximum. Like when you people are opening the papers, are opening the research paper, what you do, you see the mean, minimum, maximum, and standard deviation. Okay. So when you see mean, means the first, like the table you see is of the descriptive analysis. So you will do the first one is of descriptive analysis, where there will be a heading of minimum, maximum, mean, or and standard deviations.
The concepts of this is that standard deviation will tell you about the variation in the data. The bigger the standard deviation means you are away from the average. As standard deviation is the measurement from central dispersion, while mean is the measurement from central tendency. Okay, yani, if you study the statistics, in statistics you can find the mean in measure of central tendency, while you can find the standard deviation in measure of dispersion. That is why when you will do the descriptive analysis, in descriptive analysis you have to closely look to the standard deviation and mean, because mean and standard deviation will tell you about the validity and reliability of the data, about the data, whether the data is positively skewed or negatively skewed. You can see that data from there as well. So moving to the correlation, why you will do the correlation? Because correlation will is called as the bivariate analysis. And in bivariate analysis, what you do, you have to compare one independent with one dependent. In regression, you are comparing many independent variable with one dependent variable, like the econometric model. In econometric model, you have so many independent variables, more than one, two, three, four, and you have one dependent variable. So you just merge them. But in correlation, the story is different. In correlation, what you do, you have to compare one independent with one dependent variable, which will tell you about the normality of the data as well, about the multicollinearity of the data as well, and how you will know all the multicollinearity about this. All these things we will study this today in this topic. Then we will come to the regression analysis. Why you need a regression analysis? Obviously, you know about the econometric framework. That's okay. If you develop an econometric framework, so that econometric framework cannot be run without the regression analysis, because indirectly that econometric framework is your regression equation. So when your regression equation is over there, and for that regression equation you have the data, and the data, after what will be the data? The data will be analyzed. So you need analysis in the shape of regression. For whom? For the econometric model, because we have studied that econometric model is the combination of everything, is the combination of your research question, objective, hypothesis, and significance, and so on. That is why, in order to give answer to the econometric equation, you have to run the regression in this Stata or in any other software that you are using. So what will be happen? Stata will give you about the about prediction. Stata will give you the estimations. Stata will give you the significant relationship between the dependent and independent variable. But this concept should be based on the regression. Means in regression you can have the prediction, in regression you can have the estimations, and in regression you can have the significant impact of independent variable on dependent variable. This is also called causal relationship as well. Causal relationship means cause and effect. So cause and effect, causes will be the independent variable, while the dependent variable will be affected. Okay, so every student, either that will be an MPhil student or MS student or PhD student, he have to develop the causal effect if he is working on the Stata, because Stata will ask you that what type of econometric model you have developed. Please just lodge that things into the concern window, and then you can get all these things as well. So going to Stata, before going to Stata, there are some assumption about the multicollinearity, about the autocorrelation, about the heteroscedasticity. We will do this. These are the assumption which you have to meet. It means that when you will go for running the regression model,
you cannot ignore the assumptions, because without assumption the data is considered is garbage. Okay, the researcher consider the data is garbage if you will not do the concurrent assumption of the uh, regression. So you have to go for the assumption of the regressions as well. Okay, so let me come to the stata, and then we will discuss the the proper way. Okay, you are listening, everyone is listening, please. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Sir. So now open your Excel Yes, sheet. sir. Open your Yes, sir. Okay. Sir. Open your Stata, please, and then open your Excel sheet as well. सर मैं सेल फोन यूज कर रहा हूँ. तो फिर तो कोई जरूरत नहीं है. फिर प्रैक्टिकल आप कैसे करेंगे? ओके. सो उसमें भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा वो स्टाटा का. ठीक है, तो मैंने आई हैव हेल्प यू. ओके ओके, इट्स अ रिकॉर्डिंग. Okay, so Stata, so all the other, please open this Stata and open the Excel sheet I have shared with you people. Do you have? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so the first thing, just let me start with you people. What you will do, you have to copy it. You have to copy the this is basically an interface. You can see the interface of the data. Stata, you can open your Stata. Okay. Yes, sir. So Sir. okay. When it will be open, you can see this is a review window, or you can say it a command window. Okay. You can see a command window. This basically all the commands of this one will be here in the review window. Okay, review window, command window, and then you can have variables window and properties window, and this one is the window for the results. सर जैसे स्टार्ट है सेट चीजें आप बड़े बंदे हो गए नहीं है बड़ा बंदा हैं बड़े बंदे हो गए असल में मैं तो था नहीं मैं तो गया हुआ था शावर Kindly switch off your okay. So there are 1, 2, 3, 4 windows. You can see this is the review window, this is command window, this is property windows, and this is variable windows. Okay, you got it? Yes, Yes. sir. Okay. Yes, sir. Yes. So Yes, sir. the results will be shown over here. Okay, you are also my cursor. You can see my cursor as well. Yes, sir. Okay, so Yes, all sir. the results will be shown over here. Okay. So this is review window, this is command window, this is property windows, this is variable window, and this is your results window. All the results will be shown over here. Okay. 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 So now Okay, let's sir. move to the next session, that is basically about the importing of the data. But this is a very long command. Okay. Don't go for this command. If you want to go, you can go, but I don't want to go you for this command. What you will do, just copy your, did you open the Excel? Open the Excel, please. Yes, sir. Yes, sir. Okay, just copy the Excel. Copy the Excel, सर please. इसमें दो फाइल्स हैं, एक डॉक्टर अनीस के नाम डाटा फॉर एनालिसिस और एक फॉर डॉक्टर यूसुफ. Dr. Yusuf, please. ओके सर. Dr. Yusuf, please. जो Dr. Yusuf का. Someone is talking in between. I don't know why. Who is there? सर ये आप म्यूट कर सकते हैं, ये सैयद है, इसको म्यूट कर दे, आपके पास कंट्रोल है.
Actually, सर डमी डाटा I have था उसको रन opened many things, that's why. अच्छा एक मंथ का ठीक है, एक मंथ का एडवांस कराया है। उन्होंने आपके जो शायद वो नोटिस होगा, उन्होंने मुझे दिया था 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया एडवांस कराया। ठीक है, 3 लाख रुपया मुझे दिया। 3 लाख रुपया जमा था, 1 लाख एडवांस है टोटल। 2 लाख रुपया स्कूल की, 1 लाख। Okay, you are listening me? Yes, sir. यस सर Yes, sir. सर वो डमी डाटा इसमें रन किया GGG, Dr. Yusuf wala data, you have to run that. सही सर सही वो कॉपी करके सर किस इंटरफेस में उसको पेस्ट करना है? Wait a bit, I did not tell you that interface, please. ओके 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 Actually, someone made us very, very much disturbed. Okay, so these are the basically, you can see here as well the review window, the command window, and the property windows and the variable windows. So no, just copy. Did you all copied that? यस सर Yes, sir. You can see my cursor over here. Okay, under the statistics, you can see it. Yes, sir. Just click that, यस सर click that. एक्सेल टाइप शीट ओपन Okay, and no, in the left corner, left first corner, just paste it. Just paste it. Paste with नीचे आएगा with variable names. Yes, sir. Okay, click Done. that. Click that. डन सर हो गया Oh, Done. okay. Sir, So kindly again बता दें. sorry, just with variable name. Click here, and when you will click it, there will be a window will be open. Then on the left corner, just paste it over here. So they will ask you with variable name. You should say yes, and you will click it. Then it will be pasted over there. Okay, sir. Done. Thank you. Done. Everyone, please done. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर Okay, that's good. That's good. Okay, next phase is that you should look to your data. If your data is red, data is not red, it's in black. Yes, sir. It's in black. Okay, if it is in red, it means there is something wrong with your data. Keep this point in mind. If you paste the data and the data column is red, anyone column is red, it means there is something wrong with your data, means the data is not in the numeric shape. Okay, so then you will have a look to your Excel sheet, and when you will look to your Excel sheet, then what will be happen? You can detect that problem from there. So if the interface shows the column, any one column in the shape of the red, it means your data is not correct. Then you will go for its correction. It may be happen you write any English letter in between your data. So if you will write any English letter like alphabet, it will not accept that in the data column. Okay, so you have to keep this point in mind कि फिर आप ऐसा ना हो कि you do your regression on the wrong data. You should bring the data from red to black. Okay. Okay, sir. So no, the plan is ready to go far. You can just write describe, DES. Niche in command window, please in command window, this is a window right over here, describe, DESCRIBE.
DES. Describe. 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 And enter it, please. Describe and enter. Done, sir. Done. So Done, what sir. this shows, Yes, sir. this will tell you about what? About the Sir, number of the- observations, Yes. variable size, Observation, variable name, variable storage, size. display, Yes, so etc. it is telling you about your data, about the number observation, about the sizes, about everything. So how much years you have and how much sample you have, then it will multiply the n multiply by t, and then it will give you the observation. Okay. So next step is to write about the write sum. In command window, please write sum. SUM. And Done, enter sir. it, please. Done, sir. Done. What it shows? So variable names and Sir, sum. Observation, Mean, mean, standard standard deviation, deviation. minimum, maximum. Yeah, this is basically when you read the papers, the first table is over here of what? Of the mean, standard deviation, minimum and maximum. So on a simple one command through sum, you can have all these things if you have the data. The question is that if you have the data, like I gave you a dummy data, so you can have this analysis and that. So it's clear up to know the describe and the sum. Is it clear? Sum is basically a Yes, sir. Yes, descriptive. sir. Okay, no Yes, sir. write COR correlation in the command window. COR and then enter. Yes, sir. Got a diagonal shape table with Done, sir. values. सर COR लिखना है. COR and then enter correlation. Yes, sir. Yes, sir. Done. Done, and you can see the correlations of this is called bivariate analysis. The first one we did univariate analysis, like when we summarize, when we write the sum. In that we did a univariate analysis. Individual variables are shown over there with individual characteristics. No, what you did a correlation, that is called bivariate analysis, 1-to-1, means one independent to dependent variable. Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. सर Yeah. सर ऊपर जब कर रहे थे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 500 बता रहा था, इसमें 495 क्यों ले It's रहा है? okay. There is some missing. We will discuss this. We will discuss it. Just learn the ways. Okay. Okay. Learn the ways how we will do the description, how you will summarize it, means this, and then how you will do the correlation for the missing data, for the outliers, for the heteroscedasticity, for the multicollinearity of the data. Basically, this is very good. You studied that it is 495. So this is very good. You are observing your data. So what basically this means, that you are learning it, that your data is of observation is 500 and no, it is 495. So how it is happened? There is a missing of the data. So for missing of the data, there is endogeneity concepts. Okay, so we will study that as well. But currently, Okay, this sir. very basic steps I want to discuss with you. This is a basic steps, और जिससे मेरे स्टूडेंट थोड़े से या एमफिल के स्टूडेंट थोड़े से या पीएचडी के स्टूडेंट थोड़े से हिचकिचाते हैं कि व्हाट विल बी दिस डेटा, हाउ आई विल ब्रिंग दिस टेबल, जो आप रिसर्च पेपर्स में टेबल्स देखते हैं, हाउ आई विल डू दैट. सो इट्स नॉट अ बिग डील. द बिग डील इज selection of the topic, selection of the problem statement, objectives, question, hypothesis, and developing of the econometric framework. Okay. If you will look at it, so the next step is of what? The next step is of the regression. Okay. So you can write REG here.
just write REG, okay, and then you can have over here the variables you can see, okay. Hello, सर हम RUG लिखेंगे? REG E. regression, REG, अच्छा सही. yeah, REG, and then come over here to the variables, okay. Click the variable, dependent variable Tobin skew is over there. Tobin skew is there. Yes, sir. Yes, sir. डिपेंडेंट वेरिएबल को टोबन स्क्यू को क्लिक करें और टोबन स्क्यू से ऊपर जितने भी है उसको आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह क्लिक करें. सर मेरे साइड पे वेरिएबल्स नहीं शो होते, ये वापस कैसे शो होंगे? ये फिर इधर में आप दोबारा इन हो जाए, ये सब काट के ना, ये सब काट के दोबारा इन हो जाए प्लीज, नो इशू. आप इन दोनों को काटे उस तरह कॉपी करें, पेस्ट करें और दोबारा इन हो जाए. ओके सर. ठीक है सर. ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कैसे करेंगे? ये जब आप इकोनोमेट्रिक मॉडल डेवलप करते हैं ना तो उसमें आपका वाई डिपेंडेंट होता है ना. नहीं सर. हाँ वो करेंगे, अभी करेंगे. जी सर. इधर अभी इधर आपका डिपेंडेंट टोबन स्क्यू लिया है ना, वाई REG, उसके बाद y की जगह REG फिर लिखे टोबन स्क्यू को क्लिक करें, डबल क्लिक करें इधर वेरिएबल व्यू में. जी सर हो गया. फिर वेरिएबल क्यू के ऊपर जितने भी हैं उनको डबल क्लिक करते जाएं प्लीज, 2-3 को कर लें. ओके सर. बॉट एक्सक्यूज मी सर. जी सर वेरिएबल शो नहीं हो रहे बल्कि एरर शो हो रहा है वहां पे. इसको आप काट के दोबारा आप स्टार्ट ले लें जो हमने स्टार्ट लिया था. ठीक है सर, बहुत शुक्रिया. ना शुक्रिया. दोबारा उसी तरह कॉपी करके फिर पेस्ट करके लेफ्ट में. ठीक है सर, बहुत शुक्रिया. अच्छा, द अदर स्टूडेंट जो है REG लिखें, फिर टोबन स्क्यू लिखे, फिर 2-3 ऊपर से वेरिएबल डाल दें. वो आपके कमांड विंडो में आते जाएंगे जब आप उसको क्लिक करेंगे. हो गया? यस सर. अब इसको इंटर करें. ओके सर. इंटर करें. यस सर, आ गया. डन सर. अब देखिए आपके जो रिजल्ट विंडो है उसमें रिग्रेशन R² भी आया होगा, बीटा भी आया होगा, P वैल्यू भी आई होगी, स्टैंडर्ड एरर भी आए होंगे, सब कुछ आए हैं ना. यस सर. ठीक है. Yes, sir. This is basically what this is a simple OLS. It is called simple OLS, जो कि not acceptable. करंट जो रिसर्च हो रहा है दुनिया में उसके लिए नॉट एक्सेप्टेबल है. क्योंकि आपने क्या किया, आपने इसको सीधा चलाया, आपने डेटा को वो नहीं किया, डेटा की नेचर को नहीं देखा कि डेटा के कौन सा चलता है. इसको देखने के लिए आप एक और वर्ड लिखे VIF, वेरियस इन्फ्लेशन फैक्टर लिखे VIF. लिख लिया? यस सर. ओके. VIF को इंटर करें. जी सर. अब कितना VIF आया है? 1.14. 1.01. 1.14. जितना भी आया है. आप लोग कमांड्स की समझ आ रही है ना? यस सर. यस सर. अब देखें जरा इस साइड पे कमांड विंडो को देखें. ये देखो कर्सर जहां मेरा है, कमांड विंडो देख रहे हैं आप? यस सर. यस सर. इसमें वो सारे कमांड्स अवेलेबल है जो आपने यूज किए हैं. तो अगर आपको रीयूज करने होंगे सीधा इसको डबल क्लिक करें, दोबारा आपके कमांड में आ जाएंगे, इसको इंटर करें, वो आपका रिजल्ट स्क्रीन शॉट हो रही होती है हमारे पास. सॉरी
इसमें हिस्ट्री शो हो रही होगी। Yes, very good, very good, very good word. This is basically the history. इसमें आपने जो कुछ किया है वो आपका इधर शो होगा कमांड्स में। आप सिंपल जब तक आप इस इंटरफेस को क्लोज नहीं करेंगे, यू कैन डबल क्लिक इट, इट विल कम टू द कमांड एंड यू कैन एंटर, यू कैन हैव लाइक फॉर एग्जांपल आपने 50 कमांड्स दे दिए हैं, तो आपको पहला वाला कमांड की दोबारा आपको एनालिसिस चाहिए, सीधा आप कमांड विंडो में आएंगे, डबल क्लिक करेंगे, सीधा यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यू कैन गेट दी रिजल्ट. सो व्हाट वी डिस्कस्ड अप टिल नाउ, वी डिस्कस अबाउट दी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, जिसमें हमने सम किया है, समराइज किया है. समराइज में फिर हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन आया है और हमारा मीन आया है, ठीक है. उसके बाद फिर हमने कोरिलेशन देखा है जो कि बाइवेरिएट एनालिसिस है, यानी उसके बाद फिर हमने रिग्रेशन देखा है, सिंपल ओएलएस चलाया है, REG लिखा हुआ है, और REG के बाद हमने सिंपल क्या किया हुआ है, वी पुट दी डिपेंडेंट वेरिएबल, देन आफ्टर दैट वी पुट दी इंडिपेंडेंट. अब ये तो चूंकि एक डमी डेटा है, यू पीपल विल हैव योर ओन डेटा. So you people will have your own data. When you people have your own data, then you will run it. Okay. और हर बंदे के अपने एनालिसिस होंगे, उसका अपना सम होगा, उसका अपना कोरिलेशन होगा, उसका अपना रिग्रेशन होगा. ओके. So up till now what we discussed the descriptive correlation and regression. Now we will move to the second type of the data. Okay. हमने क्या करना है, हमने सेकंड टाइप ऑफ दी एनालिसिस की तरफ जाना है, जो कि रिग्रेशन एनालिसिस है सेकंड टाइप की. ठीक है सर, ये जो VIF कमांड आपने दी है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इफ इट इज लेस देन 4 देन दिस इज अ डेटा व्हिच कैन बी एनालाइज्ड. And if it is greater than 4, it means this is our data. There is a lot of problems are available in the data. Okay sir, thank you. Okay. उसके बाद आप लोगों को एक और कमांड दिखाता हूँ. Wait a bit. Like ये जितने भी हैं, आप लोग अगर इन स्लाइड्स को देखें, इस स्लाइड्स में उन्होंने मैनुअल बताया है. And I gave you the commands. Okay, like इस स्लाइड्स में उन्होंने रिग्रेशन को देखो, रिग्रेस GDP, इन्फ्लेशन, ये उसने किया है, फिर उसने इंटर किया है. ठीक है, ये स्लाइड्स आपका ये समरी टेबल है. समरी टेबल में आप देखें उसने क्या किया, समराइज, ये देखे दिख रहा नजर आ रहा है समराइज. यस सर. ठीक है, ये समराइज ऑलरेडी आप कर चुके हैं. कोरिलेशन को देखे, ये देखो कोरिलेट किया हुआ है, ये उस जो स्लाइड्स में आपको बता रहा हूँ. ठीक है, ये स्लाइड्स बहुत वो हमने ट्रेनिंग्स के लिए बनाए हैं, बेसिक्स के लिए, तो वो आप लोगों को ऑलरेडी हमने बता दिए. फिर ये देखो कोरिलेशन हिस्ट्री में जो रिग्रेशन GDP लिखा हुआ है, ये रेड में क्यों हुआ है? वो उसने उसका डेटा रॉन्ग होगा या उसका कमांड गलत होगा. सही सही सही, ठीक है. सर ये मेरा भी 2 दफा रेड हुआ है, ये कमांड गलत, मैंने ये कहीं कमांड पे गलत है, बिल्कुल ये SUM में S बड़ा लिख दिया तो गलत हो गया. हाँ गुड. तो ये कमांड आप आज आप लोग इस पे वो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा. मैं आपको वो 1-2 वीडियो भेजूंगा, उसके साथ उसको कंपेयर करें. यू विल लर्न द बेसिक्स ऑफ दिस डेटा के. डेटा के बेसिक्स क्या है, डिस्क्रिप्टिव क्या है, कोरिलेशंस क्या है, रिग्रेशंस क्या है. ठीक है, अब देखें उसके बाद हमारा आएगा पैनल डेटा एनालिसिस. ठीक है, पैनल डेटा एनालिसिस के लिए ये आपके मॉडल है. ठीक है, फर्स्ट मॉडल है पूल्ड OLS मॉडल, जो अभी हमने रन किया है ना, रन किया है, वो हमारा OLS मॉडल है, माइंड इट. उसके बाद हमारा जो है फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल है, रैंडम इफेक्ट. ये जो पूल्ड वाला है ये OLS है, ये बाकी जो 2 है ये GLS है. पूल्ड वाला OLS है, बाकी जो 2 है वो क्या है, वो GLS मॉडल है. ओके, यस सर. ठीक है. अब पूल्ड OLS के लिए तो हमने सिंपल जो है ना हमारा डेटा था वो चला लिया, लेकिन
बाकी अगर जब OLS रिग्रेशन से GLS की तरफ जाएंगे तो एक और स्टेप आपने करना है, ठीक है? ओस्मान टेस्ट नहीं, अभी आप एक और आप लोगों ने विंडोज की क्या करनी है, एडजस्टमेंट्स करनी है। वो बेसिकली यू कैन सी दैट, लेट मी शो द विंडो इंटरफेस टू यू पीपल। They are doing the same, like you can see जो अभी तक हमने किया है ना, they are doing the same over here, importing the, यहाँ पे देखें आप लोग इस स्लाइड को देख रहे हैं, ये इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सेल शीट को। मैंने आप लोगों को शॉर्टकट बता दिया, कॉपी किया, उधर पेस्ट किया, तो ये सारे जो 2 स्लाइड्स हैं, ये 1 2 और ये 3 स्लाइड्स ऑलरेडी आप कॉपी और पेस्ट में आप लोगों को आ गए, ठीक है? बहरहाल दिस इज द मेन वर्ड जाके जो हमने किया स्टैटिस्टिक्स के जो नीचे है। हाँ, ये देखिए, कॉपी एंड पेस्ट डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को सिखा दिया है, सही है? उसके बाद आप लोगों को एनालिसिस पूल्ड OLS कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखें, पूल्ड OLS, अभी आप दोबारा वो काम करें, आप लोग जो मैंने आपको रिग्रेशन करवाया था वो आखिर में था ना, REG वाला, सेकंड फिर उसके बाद मैंने Yes, sir. करवाया। अब दोबारा वो कमांड, रिग्रेशन वाला कमांड दोबारा क्लिक करें, कर दिया। अब इंटर करें, यस सर। तो ये बेसिकली आपका पूल्ड OLS है। ये देखिए पूल्ड OLS जो है, ये आपका पूल्ड OLS आ गया। अब इसको इधर रहने दे, इस पूल्ड OLS को हमने कंपेयर करना है दूसरे रिग्रेशन जिसको कहते हैं GLS। फिर हमने देखना है इसमें अच्छा कौन सा है। देखें, याद रखिएगा, बेसिकली वर्सेस GLS होगा ना। यस, पूल्ड OLS वर्सेस GLS, वेरी गुड, ठीक है? पूल्ड OLS हो गया। अब इसके बाद पूल्ड OLS, ये पूल्ड OLS हो गया। अब नेक्स्ट में हमने करना है, ये इसके रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट में हमने करना है आप लोगों का फिक्स्ड इफेक्ट और रैंडम इफेक्ट। अब ये वाला इंटरफेस आप लोग देख रहे हैं, जरा आप लोग क्लिक करें स्टैटिस्टिक को, प्लीज क्लिक दी स्टैटिस्टिक्स, जो ऊपर लिखा हुआ है स्टैटिस्टिक्स। यस सर। अब नीचे आए, जो लॉन्गिट्यूडनल पैनल डेटा लिखा हुआ है उस पे कर्सर रखें इधर ऐसे। यस सर, हो उसको गया। कर्सर रखने के बाद आगे सेटअप एंड यूटिलिटीज को देख लिया। यस सर। ये डिक्लेयर डेटा सेट टू बी पैनल डेटा क्लिक करें। डन। अच्छा, यहाँ पे ऊपर आप लोगों के पास इस किस्म का एक बॉक्स खुल जाएगा। यस सर। ठीक है, उस बॉक्स में जो ये पहला वाला वो है जिसमें आईडी लिखा होगा, उसको क्लिक करें। यस सर, पैनल आईडी वेरिएबल। हाँ, पहले आईडी को क्लिक करें, उसके बाद इस साइड पे आया होगा ईयर, उससे वैसे टाइम टेबल नहीं टाइम वेरिएबल। हाँ सर टाइम वेरिएबल, बिल्कुल। उसके में ईयर को क्लिक करें। ईयर एक आईडी है। सेकंड में क्या आता है सर? ईयर। फिर नीचे आए, ईयरली को कर रहे हैं सर नीचे ईयर। फर्स्ट में क्या करना था? पैनल आईडी में आईडी लिखा हुआ है सर। पैनल आईडी वेरिएबल में क्या करना था मैं पूछूं? पैनल आईडी वेरिएबल में पहला जब आप क्लिक किए तो फर्स्ट क्या शो हो रहा है? ईयर कोड। यस, कोड क्लिक करें। ओके सर। फिर इसके सामने आइएगा ईयर क्लिक करें।
ईयर क्लिक करेंगे, उसमें भी सर पहला कोड ही आ रहा है। हाँ, दूसरा कोड तो हो गया ना, दूसरा ईयर कर। अब ईयर के लिए ठीक है सर, कर लिया। अब इसी के नीचे आए ईयरली डेटा है ना, ये साल का डेटा है, नीचे आए ईयरली लिखा हुआ है डेटा, ये सर उसको सिलेक्ट कर लिया। उसको सेलेक्ट कर, आप इसको एंटर कर लें, ओके कर लें। ये सर ये आ गया। ये इधर लिखा हुआ है ना स्ट्रांगली बैलेंस्ड। स्ट्रांगली बैलेंस बिल्कुल यस, सर। अब आपका डेटा, पैनल डेटा स्ट्रांगली बैलेंस्ड हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने रैंडम इफेक्ट चलाना है और फिक्स्ड इफेक्ट चलाना है, जो कि बहुत आसान है। अब आप चूंकि ओएलएस तो हो गया ना आपका, ओएलएस के बाद आप जीएलएस के लिए आए हैं, तो जीएलएस के लिए ये रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी थी, ये हमने कर ली, डेटा को बैलेंस किया। अब जीएलएस में आपके पास दो रिग्रेशन है, एक को कहते हैं जीएलएस फिक्स्ड इफेक्ट और एक को कहते हैं जीएलएस रैंडम इफेक्ट। क्लियर? अब इन फिक्स्ड और रैंडम इफेक्ट को जब हम चलाएंगे तो उसके बाद हमने इन दो में से एक को सेलेक्ट करना है। क्लियर है? सेकंड दो में से एक को सेलेक्ट करना है। इन दोनों में से फिक्स और रैंडम में से। हाँ, फिक्स्ड इफेक्ट जीएलएस और रैंडम इफेक्ट जीएलएस दोनों में से एक सेलेक्ट करना है, लेकिन सिलेक्शन हम खुद नहीं करेंगे। सिलेक्शन के लिए हम एक टेस्ट रन करेंगे, दैट इज कॉल्ड हॉजमैन टेस्ट। ओके, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हॉजमैन टेस्ट। और वो हॉजमैन टेस्ट जब हम रन करेंगे तब वो हमें बताएगा कि हमने कौन सा, आइदर हमारे पास रैंडम इफेक्ट ठीक है या फिक्स्ड इफेक्ट ठीक है। तो उसको रन करने के लिए हमें सबसे पहले जो है ना, जो पहला वाला चलाना है वो जरा आप लिखें। ये जो आपने रन किया है ना, इसका कमांड जरा क्लिक करें, जो पहला रिग्रेशन रन किया है। किया है? जी सर। यस सर, हो गया। अच्छा, ये REG लिखा हुआ है ना? यस सर। इससे पहले XT लिख लें। इससे पहले सर? हाँ, REG से पहले, स्टार्ट से पहले XT इसके साथ लिखें। स्पेस वगैरह नहीं देनी सर? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल XT REG। ओके सर। फिर आखिर जब खत्म होता है कॉमा दे दें। ओके सर। फिर इसके पीछे लिखे FE, फिक्स्ड इफेक्ट, FE। FE। कॉमे के बाद? कामे के बाद FE। फिर इंटर करें सर स्पेस नहीं देना, फिर कामे के बाद FE लिखें, इंटर करें। यस सर, F टेस्ट आ गया। आगे इसके साथ क्या लिखा हुआ है जरा टेस्ट देखें। फिक्स्ड इफेक्ट टेस्ट होगा। यस सर, फिक्स्ड टेस्ट है 19.303। प्रोबेबिलिटी है F इज इक्वल टू 0.000। ठीक है, दैट इज ओके। बस सिर्फ आप लोगों को ये तरीका आना चाहिए। आ गया ना तरीका? सर ये दोबारा से समझा दें। ये जो पहले हमने रिग्रेशन रन किया है ना, जैसे उसको डबल क्लिक करें तो ये आपके कमांड विंडो में आ जाएगा। रिव्यू लेफ्ट में, रिव्यू विंडो में जो बिल्कुल टॉप लेफ्ट में, उसको इधर कर लें, डबल क्लिक कर लें। आ गया? यस सर। अब जहां से शुरू होता है REG से, REG से पहले XT लिख लें। लिख लिया? XT स्मॉल XT है, मतलब स्मॉल। अब जब खत्म होता है वहां पे कॉमा डालें और लिख लें FE। सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बाद जहाँ खत्म हो रहा था, हाँ, वेरी गुड। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जहां एंड होते हैं वहां पे आप कॉमा डालें और लिखें FE। अच्छा सर, आगे? अब इंटर करें, ओके करें या इंटर करें।
सर इस पे तो Done, रिजल्ट दे sir. रहे हैं, the panel variable code may not be included as an independent variable, something like that. आपने क्या अच्छा क्या लिखा है आपने FE कामा FE सर xt आगे रिग्रेशन और बाकी वही चलता गया, वेरिएबल के बाद कॉमा fe और इंटर कर दिया। कामा के बाद स्पेस दे दें। स्पेस के बगैर चल रहा है सर। सर ये चल रनिंग कर रहा है हमारा तो। Sir, without space हो गया। हमारा तो हो गया है फिक्स भी रैंडम। कोई बात कोई वो नहीं करता इंटरफेस। सो हो गया कि नहीं हुआ अभी? यस सर सर हो मेरा गया। नहीं हो रहा, चले खैर चलते यस सर रहें। हो गया। सर मेरा भी नहीं हो रहा। वैसे हो नहीं रहा ये XTREG और बाकी वही सारा फिर कॉमा फिर फिक्स्ड इफेक्ट। आप लोगों ने डेटा बैलेंस किया हुआ है जो कर रहे हैं अभी प्लीज? जी सर डाटा बैलेंस्ड है, हमारा आया था रिजल्ट। बैलेंस्ड है तो यस स्ट्रांगली बैलेंस्ड है। जी सर। बाकियों का हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा तो आप लोग दोबारा ट्राई करें जिनका नहीं हो रहा। XTREG फिर सारे वही जो प्रीवियस थे, फिर कामा और फिर फिक्स्ड इफेक्ट FE। हो गया? नहीं हो रहा। सर नहीं हो रहा सर। आई डोंट नो कि जिनका हो रहा है उनका क्या था, जिनका नहीं हो रहा। ओके अच्छा आप करें। आपका पहले OLS तो चला है ना? यस सर। जी सर OLS चला है। OLS आप इस तरह करें कि ये जो सामने आपको इंटरफेस नजर आ रहा है, ये जो डेटा है जो स्टेटिस्टिक है, ये प्रोसेस भी कर लिया है सब ने। ये आप आते हैं लॉन्गिट्यूडनल पैनल डेटा पे, फिर सेटअप पे जाते हैं, फिर डिक्लेयर डेटा टू बी पैनल डेटा, ये कर लिया सब ने? यस सर ये कर लिया। और स्ट्रांगली बैलेंस है। जिसका नहीं हो रहा वो मुझे बताएं। सर ये वाला प्रोसेस अगर आप दोबारा से एक दफा बता दें, अगर उसमें कोई मिस्टेक हो तो देख लें। नहीं स्ट्रांगली बैलेंस आपका नीचे आ रहा है? पता नहीं। जी सर स्ट्रांगली बैलेंस्ड है, उसके बाद ये काम आगे नहीं हो रहा, वो आगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट इंक्लूडेड इन द पैनल डाटा आ रहा है। तो आपने कौन से इंडिपेंडेंट? अच्छा इस तरह करें कि आपने जो सर पहले ये रिग्रेशन चलाया है वो ही किया है ना? सर हम्म सर ये शाज़ेब ने वही कोड जो है वो चैट में सेंड किया है, वो लड़के देख लें जिनका मसला जरा है, वो देखो। पता चल जाएगा। चैट से वो जरा कॉपी करके इंटर कर लो। वो कॉपी पेस्ट कर लें, वो आपको समझ आ जाएगा। अगर डेटा आपका बैलेंस है, अगर नहीं बैलेंस तो डेटा के बैलेंस का ये तरीका है कि आप स्टेटिस्टिक पे जाएं, इधर स्टेटिस्टिक को क्लिक करें, फिर नीचे आए, इधर लॉन्गिट्यूडनल पैनल डेटा लिखा हुआ है, फिर इसको क्लिक करने के बाद सेटअप एंड यूटिलिटीज पे आए, फिर इसको आगे कर्सर रखें तो डिक्लेयर डेटा सेट टू बी पैनल डेटा, इसको क्लिक करें। देन यू विल आपके पास वो कुल ओपन हो जाएगी जिसमें आपने कोड देना है, ईयर देने हैं और ईयरली देना है। हमाद आपने वो किए? अच्छा वो जी सर मेरा हो गया, रिजल्ट आ गया। मेरा हो सकता है किसी में स्पेस मैंने ना दिए कुछ ऐसा, अभी हो गया जो कॉपी किया मैंने शाज़ेब भाई का। ठीक है, दैट्स गुड दैट्स गुड। तो आरफा आपका? मिस आरफा? सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने किया है नहीं ये जो भी आपने। मैं आगे नहीं जाऊंगा जब तक आपको समझ में ना आए। देखें रिग्रेशन तक आपको समझ में आया है जब हमने पहले Yes, sir. रिग्रेशन? ओके जी बाकी सारा। सर ये जो भी आपने जो स्टैटिस्टिक्स वाला बताया, ये इसके बाद ये जो देखें। डायलॉग बॉक्स जो सबसे एंड पे
खुलता है। यस, ये एक स्टार्ट में खुलता है डायलॉग बॉक्स। सर इसमें पैनल आईडी में हमने ईयर लिखा है, तो जो टाइम वेरिएबल है उसमें टाइम भी वेरिएबल ईयर में या टाइम वेरिएबल में ईयर लिखना है, पैनल आईडी में आपने कोड लिखना है। पैनल अच्छा। कोड कर लें, क्लिक करें, और नीचे ईयरली लेना है। नीचे ईयरली लेना है। सर आ गया। अब आप अपने उसको इंटर करें, ओके करें, तो आपके पास नीचे स्ट्रांगली बैलेंस आएगा। जी सर। तो अब ये शाहजेब भाई का अपना वो कॉपी कर लें, लिंक उसने उधर दिया हुआ है, या फिर ये करें कि XTREG जो इससे पहले की रिग्रेशन की कमांड है उसके सामने REG से पहले XT लिखें, फिर कामा डालें, फिर फिक्स्ड FE लिखें। सर नहीं हो रहा। नहीं वो कोड आपका स्ट्रांगली बैलेंस हो गया। सर जी वो हो गया। अच्छा, अब देखें कोड है इधर चैटिंग में, कोड जरा दे दें इसे, वो कोड डाल दें। जैसे चैट करके ओपन करेंगे उसमें कोड है, वो ले सकते हैं। हो गया। यस सर। ओके, अब नेक्स्ट मूव करेंगे, आप अपने कमांड विंडो में लिखें EST फिर स्पेस दे के लिखे स्टोर STORE, फिर स्पेस दे के लिखे फिक्स्ड FIXED, इंटर करें तो ये स्टोर हो जाएगा। आपका जो प्रीवियस रिजल्ट है वो स्टोर हो गया। आप स्टोर हो गया। सर दोबारा बताइएगा। EST फिर स्पेस लिखें स्टोर, और फिर स्पेस देके फिक्स्ड FIXED। जैसा हो गया, स्टोर हो गया। ये आपका रिजल्ट जो फिक्स्ड इफेक्ट आपने ऊपर रन किया है वो स्टोर हो गया। अब आप उस पे आगे आपको ये क्या करेंगे, आपको आगे ये काम आएगा, आपने इसको स्टोर किया है। अब दोबारा आपने जो XTREG चलाया था जिससे रिजल्ट आया था XTREG और फिर कामा फिक्स्ड इफेक्ट, वो दोबारा क्लिक करें। क्लिक किया। अब ये कामा के बाद आपने उधर फिक्स्ड इफेक्ट लिखा है, यहाँ पे RE लिखें, FE की जगह R काट के F काट के R लिखें। सर ये आ गया। ये इंटर करिए रैंडम इफेक्ट। देखें आपने पहले GLS फिक्स्ड इफेक्ट चलाया है, फिर उसके बाद आपने उसके रिजल्ट को स्टोर किया है, फिर उसके बाद आपने GLS रैंडम इफेक्ट चलाया है, फिर अब इस रैंडम इफेक्ट के रिजल्ट को भी स्टोर कर लें। उसी तरह EST ऊपर कमांड है, उसके साथ EST स्टोर फिक्स्ड है, इसके साथ EST स्टोर रैंडम है। सर लास्ट कमांड दोबारा बता दें। लास्ट कौन सा, ये जो रिग्रेशन है रैंडम EST स्टोर रैंडम। यस सर। ये रिग्रेशन क्लिक किया, ऊपर आपने फिक्स्ड इफेक्ट चलाया है ना रिग्रेशन के लिए, Yes, sir. XTREG वाला, उसको जरा डबल क्लिक करें। इधर आपने रिव्यू विंडो से क्लिक किया। यस सर। अच्छा, ये अब आपकी कमांड विंडो के आखिर में जाए, ये F की जगह RE लिखें, F की जगह R लिखें। यस सर। इंटर करें। ओके सर, डन। अच्छा देखिए, अब आपने क्या किया, अब आपने पहले फिक्स्ड इफेक्ट चलाया है, फिर फिक्स्ड इफेक्ट को स्टोर किया है, अब रैंडम इफेक्ट को चलाया है, रैंडम इफेक्ट को उसी तरह स्टोर कर दें।
कर दिया सर। ठीक है, अब आप लोगों को इसमें से एक की सिलेक्शन करनी है कि कौन सा अच्छा सर है। इसको स्टोर करने के लिए EST स्टोर एंड देन फिक्स्ड। ये नहीं, रैंडम है ना, दूसरा आपने रैंडम चलाया है। ओके थैंक यू। पहला आपने फिक्स चलाया उसको स्टोर किया, दूसरा आपने रैंडम चलाया उसको स्टोर किया। क्लियर है? यस सर। अब आप देखें यहाँ तक हमने क्या किया है, हमने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस किए हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन, मिनिमम उसकी शक्ल में। उसके बाद हमने कोरिलेशन रन किया है जो हमारे पास बाईवेरिएट एनालिसिस है वो। उसके बाद हमने मल्टीवेरिएट एनालिसिस किया है OLS, पूल्ड OLS की शक्ल में। सादा सा हमने REG लिखा है, उसके पीछे डिपेंडेंट वेरिएबल फिर इंडिपेंडेंट डाले, फिर रिजल्ट आया। उसके बाद हमने डेटा को बैलेंस किया है। क्या किया है हमने? डेटा को बैलेंस किया है स्टैटिस्टिक में जाके, फिर लॉन्गिट्यूडनल डेटा में जाके, फिर सेटअप यूटिलिटी में जाके, फिर डिक्लेयर डेटा सेट टू बी पैनल डेटा, उसमें जाके हमने ये डेटा सेट किया है, स्ट्रांगली बैलेंस किया है। फिर हमने क्या किया है, उसके बाद हमने 2 रिग्रेशन मॉडल में से सिलेक्शंस करनी है, यानी रैंडम एफएक्स GLS और फिक्स्ड एफएक्स GLS में। तो सबसे पहले हमने फिक्स्ड इफेक्ट चलाया है। फिक्स्ड इफेक्ट के लिए हमने क्या किया है कि वही पुराना जो रिग्रेशन हमारे रिव्यू विंडो में पड़ा था उस पर डबल क्लिक करके नीचे लेके आए, तो REG से पहले हमने XT लगाया है और आखिर में हमने कामा डाल के FE लिखा है। फिर उसको इंटर किया है, हमारे पास GLS फिक्स्ड इफेक्ट रिजल्ट आया है। उसके बाद हमने उस GLS फिक्स्ड इफेक्ट रिजल्ट को किया है, स्टोर किया है। कमांड था EST स्टोर फिक्स्ड। फिर हमने दूसरा चलाना है GLS रैंडम इफेक्ट। रैंडम इफेक्ट के लिए हमने सिर्फ ऊपर जो हमने फिक्स चलाया है उसमें FE लिखा था, इसमें RE लिखा है, इंटर किया है, दैट्स ऑल। उसके बाद हमने रैंडम इफेक्ट को भी स्टोर किया है इन द सेंस दैट EST स्टोर रैंडम हो गया। अब वी हैव टू मेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट कि विच इज द बेस्ट। आइदर रैंडम इफेक्ट को मैंने अपने थीसिस में प्रेजेंट करना है और आई हैव टू प्रेजेंट द फिक्स्ड इफेक्ट। सो व्हाट बेसिकली दिस मींस के दिस डिसीजंस बिलोंग्स टू द another test that will decide that who is the best, and that test is called Hausmann test. Hausmann आप लिख के जरा HAUSMAN। सर दोबारा बताएं। HAUSMAN। HAUS लिखा। अब इंटर करें। सर ये तो कह रहा है नो प्रीवियस रिजल्ट। यस वेरी गुड, यही मैं चाहता था, मैं यही चाहता था कि नो प्रीवियस। अब आपने कुछ दिया ही नहीं, हाजमन के साथ लिख के फिक्स्ड। ओके हाजमन के साथ लिखे फिक्स्ड। सर विद स्पेस और विदाउट? विद स्पेस। अब आ गया। आ गया। अब नीचे P वैल्यू देखें, प्रोबेबिलिटी इज नॉट पॉजिटिव डेफिनेट। P वैल्यू सर राइट हाजमन बाय फिक्स्ड में फिर इंटर करना है उसके साथ क्या? सर मेरा ये आ रहा है अनऑर्गेनाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड। अच्छा, पहले वाले सही आ रहे थे? पहले सही आ रहे थे सर। फिक्स्ड भी आपका स्टोर, आप लिखे हाजमन फिक्स्ड लिखें। सर ये मेरा भी यही आ रहा है, टू मॉडल्स यूज्ड टू बी डिफरेंट। अब हाजमन लिखे, हाजमन फिर फिक्स्ड लिखें। आ गया? जी सर, जी सर हो गया अभी। हो गया।
हो गया जी सबका। अब नीचे Yes, आए कि sir. प्रोबेबिलिटी वैल्यू देखें। मैं अब आपको बताता हूँ कि कौन 0.78 कितना है पॉइंट 0.78 7842 0.78। 7842 दूसरा क्या है, यानी ये 0.05 से बड़ा है ना जिसका भी है। जी सर बड़ा है। अच्छा तो इसके साथ लिख के कि इफ लिखें, इफ p वैल्यू सर ये कमांड में लिखना है ना? नहीं 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 नहीं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये अब आप डिसीजन कर रहे हैं। अच्छा if p value is greater than 0.05 यानी probability जो है, if p value is greater than 0.05 then you have to select the random effect model RE। अगर p वैल्यू 0.05 से ज्यादा हो तो रैंडम इफेक्ट हम Yes, सिलेक्ट करेंगे। yes, otherwise fixed effect। अगर p value is less than 0.05 or equal to 0.05 then go for the fixed effect। ठीक है, अगर इससे लेस हो 0.05, जब जिस तरह भाई ने 0.7 कुछ बताई थी तो उसको हम रैंडम इफेक्ट करेंगे। नहीं 0.7 बड़ी है ना 0.05 ये बड़ी है ना, इससे तो उसमें रैंडम करेंगे हम। Yes, this is random effect। Clear है? So if p value is greater than or less than? तो 0. If p value is greater than 0.05, go for random effect। If p value is less than 0.05, go for fixed effect। जिसकी 0.05 से छोटी हो वो फिक्स्ड पे जाएगा, क्योंकि आप सबके मॉडल डिफरेंट होंगे ना, ये तो आप ए सेम डेटा पे कर रहे हैं, तो आप सबके मॉडल डिफरेंट होंगे। जब सबके मॉडल डिफरेंट होंगे उसकी पी वैल्यू हो सकता है डिफरेंट हो, उसके सिग्निफिकेंस डिफरेंस हो। तो अगर ये 0.05 से लेस होंगे, सो व्हाट विल बी हैपन, it will be considered as the fixed effect GLS model। and if p value is less than greater than 0.05, you have to select the random effect GLS model। क्लियर है? Yes sir. ठीक है। So any question up till now? कोई क्वेश्चन? सर इसमें हमने हाउसमैन फिक्स चलाया, हाउसमैन रैंडम नहीं चला सकते? हाउसमैन रैंडम चला लें। मैंने सर चला वो दिया, कह रहा है टू कि मॉडल्स नीड टू बी डिफरेंट, ये समझती हूँ मकसद। कमांड ही हाउसमैन फिक्स्ड का आया है। फिक्स पे चलाई है तो चल गई है ना सर, हाउसमैन रैंडम चलाई है यही तो मैं कह रहा हूँ कि कमांड सिर्फ हाउसमैन फिक्स फिक्स्ड का इन्होंने बनाया है जो हमें आता है, क्योंकि नहीं समझ आया सर। मैं कह रहा हूँ कि स्टेटा कॉर्पोरेशन यूएसए वालों ने जो कमांड हमें दिया है वो यही दिया है कि हाउसमैन फिक्स्ड ही चलाएं, तो वो रैंडम की ऑप्शन ही नहीं है। दोनों इकट्ठे भी यूज हो सकती है, इकट्ठे यूज कर लें। सही है? यस सर। एनी क्वेश्चन? नो सर। एक ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद आते हैं। तो साथ ही फिनिश कर लें। सर ये पूरा सेशन कंप्लीट ना कर लें? बस खत्म करें। नहीं कह रहे कंप्लीट कर लेते हैं। सर साथ ही कंप्लीट कर, जितना भी है साथ ही कंप्लीट कर लें, ब्रेक ना ले जाए। सही है।
आज पढ़ने का दिलाया हुआ है साहब का। ये कौन है, ये जो बैठा हुआ है? नहीं, ये जो कह रहा है कि कंप्लीट कर लें। सर नहीं, नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा बस फिर थोड़ा सा 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो अल्लाह के बंदो। सर 10 मिनट की कर लेते। यस सर, सही है। ठीक है, 10 मिनट की ब्रेक एक ले लो छोटी सी, फिर उसके बाद आके एक छोटा सा सेशन है, फिर इसको करेंगे ख़त्म। ओके सर। ओके ओके सर। ओके।
डीट है। जमीन इलायची डाल चाय में।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम। So no, we will move to some assumption that should be followed before the regression model. Okay. Please write Okay. the first command of heteroscedasticity. Heteroscedasticity का पहला command क्या है? You should write it. Okay. फर्स्ट आप क्या करें कि वो सिंपल रिग्रेशन दोबारा चला लें, जो पहले REG वाला रिग्रेशन नहीं था वो जरा दोबारा रन कर दे प्लीज। ओके सर। ओके, सब रन कर दे प्लीज। ओके सर, डन। डन सर। ओके, अब इसके बाद आप लोग हेटेरोस्केडासिटी के लिए लिखे IMTEST। ओके सर। इंटर किया। अनरिकग्नाइज्ड कमांड। अच्छा, एक इसके बाद अब लिखें VIF लिखें। यस सर सर। हमारा तो आ गया था। चलो, जिनका नहीं आता उसको इसके बाद आता है। जिनका आ गया था उसका क्या रिजल्ट है? सर टोटल 19.57 पाई स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम 11 और पी वैल्यू 0.0516। और VIF नहीं, उसका जो अपना IM टेस्ट है उसमें क्या क्या आता है? स्क्यूनेस एक कर्टासिस है। IM का ही बताया। स्क्यूनेस एक कर्टासिस नहीं आए? हाँ ये सर, हेटेरोस्केडासिटी, स्क्यूनेस, हेटेरोस्केड कोर्टोसिस। बिल्कुल आया। स्क्यूनेस एक कर्टासिस है और हेटेरोस्केडासिटी है। ठीक है। स्क्यूनेस, कर्टासी और हेटेरोस्केडासिटी, ये तीनों कंसेप्ट आप अपने साथ नोट कर लें। उसके बाद एक और कमांड दे दें। सर हमारा रिजल्ट नहीं आया। कमांड आपने क्या डाला है? अरे लास्ट प्लीज रिपीट कर दीजिएगा। IM टेस्ट। सर VIF एंटर किया और फिर INTEST एंटर किया। उसके बाद IMTEST। IM और N। नहीं N? नहीं, IMTEST। IM टेस्ट। ओके सर, डन। हो गया। यस सर। स्क्यूनेस, कर्टासिस और हेटेरोस्केडासिटी, ये नीचे 3 टेबल में आए होंगे ना? जी सर। यस सर। ठीक है। इसके बाद एक और टेस्ट लिखें OVTEST। यस सर। हो गया? एंटर। आ गया? यस सर। यस सर। इसके सर बाद रिपीट कर दे कमांड। OVTEST। ओके सर। हो गया? यस सर, आ गया। ओके। उसके बाद आप लोग लिखें, अच्छा ये बेसिकली क्या है? ये आपके assumption ऑफ रिग्रेशन है, जो कि नॉर्मेलिटी के लिए है, इंडोजेनिटी के लिए है, हेटेरोस्केडासिटी के लिए है, और जो VIF का है वो मल्टी कोलिनरिटी के लिए है। आप जरा इसको एक नोट में लिखें प्लीज। VIF लिखें ताकि याद रहें। VIF is used for multicollinearity. यस सर। उसके बाद लिखें OV test is used for endogeneity. उसके बाद लिखें IM test is used for normality
and heteroscedasticity. क्या सर हेड्रो हेट्रोस्केडासिटी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है HETER, हेट्रोस्केडास्टिसिटी, हेट्रोस्केडास्टिसिटी। और एक और कमांड जरा दे दें, HETTEST, TEST, het test, HETTEST, हेड पेस्ट। यस सर। ये भी हेट्रोस्केडासिटी का है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने आप लोग को टेस्ट बताए हैं, वी विल दिस इज व्हाट दिस विल बी यूज्ड बिफोर रनिंग द GLS, बिफोर रनिंग द रिग्रेशन। क्योंकि ये टेस्ट आपके, मैं इसके थ्रेशोल्ड वैल्यू आपको बताता हूं कि इसके थ्रेशोल्ड वैल्यू के बेस पे आपको पता लगे कि आपका डेटा लीनियर है, नॉर्मल है, हेट्रोस्केडासिटी है उसमें, इंडोजिनाइटी है उसमें या नहीं है। यानी मैंने तो आप लोगों को पहले रिग्रेशन सिखा दिया ना, लेकिन रिग्रेशन रन करने से पहले आप लोगों ने ये वाले टेस्ट रन करने ताकि आपको डेटा की नॉर्मेलिटी, डेटा की हेट्रोस्केडासिटी, डेटा की इंडोजेनाइटी, डेटा की ऑटो कोरिलेशन और डेटा की नॉर्मेलिटी का पता लग जाए। क्लियर है? ये इसके अपने थ्रेशोल्ड वैल्यूज हैं। अगर उस थ्रेशोल्ड वैल्यू से, इस कमांड के जरिए अगर वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से आगे हैं तो इट मींस आपका डेटा ठीक नहीं है, फिर आपको अपना डेटा ठीक करना होगा। अगर आपका डेटा नॉर्मल नहीं है तो आपको इसको नॉर्मल करना होगा। आप लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी होगी ना, नेगेटिव स्क्यूड और पॉजिटिव स्क्यूड, ठीक है। अगर आपका डेटा जो है ना, अगर आपका डेटा अकॉर्डिंग टू बेल शेप्ड है तो दैट मींस कि इट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इट मींस अगर आपका एक पॉजिटिव शेप्ड है तो इट इज आल्सो नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आपका एक नेगेटिव टेल्ड है, टेल इस साइड पे, तो इट इज नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूटेड। What basically this means that mu should be equal to standard deviations. It means the data will be bell shaped. And who will tell you the data will be bell shaped? Obviously the heteroscedasticity, the multicollinearity, the normality of the data will tell you about this. आपका skewness और kurtosis जो हमने IM टेस्ट के थ्रू किया है वो आपको इसके बारे में बताएगा। यहां तक समझ आई? यस सर। ओके, अब नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है जिससे आप लोग खुश हो जाएंगे, जिसको मैंने भी अभी सीखा है। वो बेहतरीन कमांड है कि आप लोगों, पहले जब हम PhD कर रहे थे, हमें ये ख्वारी थी कि हम ये जो सामने टेबल नजर आ रहा है इसको कॉपी करते थे, हम एक्सेल में डालते थे, फिर इसकी एक प्यारी सी शेप बनाते थे। वो कम से कम 1.5-2 महीने हमसे उसने लिया था। लेकिन अब एक कमांड आ गया है, वो कमांड के थ्रू सीधा जब आप वो देंगे तो ये वाला टेबल आपको डायरेक्टली वो वर्ड में दे देगा, और बेहतरीन इन्होंने बनाया है, ठीक है। उस कमांड को सबसे पहले हमने इंस्टॉल करना है। जरा लिख के कमांड लिख के। यस सर। SSC स्पेस install 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 space ASDOC लिखा। दोबारा रिपीट करता हूं। यस सर। दोबारा रिपीट करता हूं, SSC, उसके बाद इंस्टॉल, उसके बाद ASDOC। लिख लिया? यस सर। इंटर करें। यस सर, ये हो गया। चेकिंग डॉस कंसिस्टेंसी। हाँ देखिए ना, हो रहा है, अभी हो रहा है। वेरीफाइंग नॉट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। हाँ देखो, अब इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट।
हो गए, जिसके साथ इंस्टॉल हो गया वो बस इसको रहने दे इधर ही। यस सर। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है सर। ओके सर। हो गई। सर नहीं हुआ। दोबारा ये होगा, ये नीचे ये होता रहता है। सर इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी। हाँ, ये इंटरनेट से कनेक्ट करके होता है। वो इसको लिंक कर देता है ना साइट के साथ, फिर उससे वो डाउनलोड होता है। ओके सर। अच्छा, आप एक काम करें, आप एक ये काम सब ये काम करें कि जो आपने XTREG रैंडम इफेक्ट चलाया था उसको दोबारा रन कर दें अपने रिव्यू व्यू से, उसको डबल क्लिक करके, ताकि कमांड विंडो में आ जाए। सर कौन से वाला, जो XT जो फिक्स्ड वाला? कोई भी चला ले, XT वाला कोई भी चला ले। यस सर, हो गया। अब इसको दोबारा क्लिक करें ताकि कमांड विंडो में आ जाए। आ गया सर। इसके आगे लिखें स्टार्ट में ASDOC। सर FEASDOC। ASDOC स्टार्ट में लिखें, सिर्फ स्टार्ट में ASDOC। FE नहीं हटाना सर? नहीं नहीं नहीं, वो रहने दें। इंटर करें सर कमांड के स्टार्ट में, कमांड के एंड में? स्टार्ट में। सर स्पेस भी देनी है। स्पेस देनी है। देखें XTREG से पहले लिखें ASDOC। कमांड इज नॉट इज सर आ गई है। सर आ गई है क्या? तो सर सर स्पेस भी देना है। सर माय फाइल बन गई, होगी। बन गई ना वर्ड फाइल? जी सर बन गई। दिस इज द बेस्ट कमांड इन स्टेटा। आपको कोई इसमें प्रॉब्लम? अच्छा, जिसकी नहीं बन रही उसका दोबारा देखते हैं। सर ये चैट रूम में शेयर कर दिया। नहीं बन रही, इंस्टॉल ही नहीं हुई। इंस्टॉल जिसकी नहीं हुई उसका मैं कुछ नहीं कह इंस्टॉल नहीं हो रही। इंस्टॉल जिसकी नहीं हो रही उसका वो अपने वो कर लें, अपना इंटरनेट देख लें। सर इंटरनेट तो करेक्ट है। दोबारा कर लें, दोबारा दे दे कमांड, अपने लिख के कमांड को SSC स्पेस इंस्टॉल INSTALL, उसके बाद लिखे ASDOC। सर इधर स्पेस देना है? हाँ स्पेस दे दें। इंस्टॉल के बाद स्पेस, फिर ASDOC। जी इंटरनेट के साथ हो रहा है सर ASDOC। हाँ DOC, ASDOC। सर D जी या सर G? डी डॉगी 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 DOC। सर ये सर चैट रूम में शेयर किया हुआ है, अगर किसी ने कॉपी करना तो। नहीं चलो खुद साथ कर लें, यू आर डूइंग वेरी गुड। साथ कर लें ताकि सनद रहे और इनको याद रहे। ASDOC चैट रूम से भी देख लें प्लीज। हो गया सर लिखा हुआ है इज नॉट अ स्टेटा डाउनलोड साइट। ओके, आपका फिर ये है कि आपका पायरेटेड है, कोई इशू नहीं है। आप सिर्फ ये कमांड साथ रखें, लेकिन जिनका हुआ है बाकी का हो गया। यस सर। यस सर। हाँ वो सर मेरा भी नहीं हो रहा है। आपका क्या गोविंद लिखा हुआ है? नहीं हो रहा सर ये लिखा आ रहा है कि SDocs consistency and verifying not already installed। वेरीफाई कर रहे हैं ना अभी, अब थोड़ा ठहरे हैं, ये वेरीफाई कर रहा है। नीचे इसका देखें, यहाँ मेरे कर्सर अगर यहाँ पे थोड़ा सा इसका वो आ रहा है, मूवमेंट आ रही है, आप इसको थोड़ा रहने दे, कर रहा है। अच्छा मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैं आपके साथ विंडो शेयर कर लेता, लेकिन ये इंस्टॉल्ड।
सर हर कमांड को वर्ड में शिफ्ट करने के लिए आपको यही लास्ट स्टेप Yes. रिपीट करना पड़ेगा? जी सही। नहीं नहीं नहीं, एक मरतबा आपके उसमें आ गया ना, ये इंस्टॉल हो गया, बस ये हो गया, उसके बाद सिर्फ आप लोगों ने जो आपका कमांड है उससे पहले लिखना है ASDOC, बस जी, I फिर get it. आपको ये वो देगा अपना, ठीक। क्या कहते हैं, ये सारा दे देगा। अच्छा सर, इंस्टॉलेशन के बाद क्या स्टेप्स थे? इंस्टॉलेशन के बाद आप लोगों ने हर जो आपका रिग्रेशन कमांड है या कोरिलेशन है या जो भी, उसके सामने लिखा है ASDOC, बस इंटर करें तो ये ऑटोमेटिकली आपको पॉपअप में एक वर्ड की फाइल भी दे देगा, जिसमें आपका जो कोरिलेशन है या रिग्रेशन है या कोई और टेबल है वो आपको बना बनाया फिटेड तैयार मिल जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं यहाँ से कॉपी करने की, दोबारा इस पे ख्वारी करने की, तो आपको कॉपी मिल जाएगा। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कमांड दे हैव डेवलप्ड। और इस कमांड का कंसेप्ट भी IM साइंसिस के एक प्रोफेसर ने दिया था, प्रोफेसर डॉक्टर अताउल्लाह शाह ने, उसके बेस पे ये कमांड डेवलप हुआ है। सो दिस इज़ लाइक द बेस्ट कंट्रीब्यूशन के आप लोग जो है ना, ये कमांड अगर आपको आता है SDOC वाला, तो आपको सीधा सीधा वर्ड में वो करना इजी हो जाएगा। So let's discuss these things again. What we did today. So this is very much important that we should have a recap of all the scenario के हमने आज generally क्या discussion की, पहले session में जो discussion की, that was very much important के उसमें we discuss about the titles, about the abstracts, about the introduction, about the problem statement, about the research objectives, about the research questions, about the literature, about the sample, about the population, about the significance, about the philosophy thinking like positivism, interpretivism, realism, and about the descriptive, about the correlation, about the regression. Then what we did, then we came to the analysis, and we did three type of analysis. The first we did the descriptive analysis, that is called univariate analysis. The second one is correlation, that is called bivariate analysis. The third one is the regression, that is called multivariate analysis. So for the descriptive analysis, we just run two commands. The first one is describe. We just want to see our data, whether it is scattered nicely or not. Then what we did the sum command, and in sum command we saw the descriptive analysis, like mean, like standard deviation, like minimum and maximum. Then we move to the bivariate analysis, that is about the correlation, and we just write the COR and run it and then go on. Then we move to the regressions. In regression, what we did, we just simply run the regression REG, then we put dependent variable, then we put independent variable, and so on. So what happened after that, regressions, we move to the another regressions. For that regression, what we have to do, we have to make the data balanced. And for that, making the data balance, we made the data balance. Then after that, what we did with the command, we only write xtreg comma fixed effect. Then we store the fixed effect. Then after that, we run the random effect. Then we store the random effect. Then after that, what we did, we run the Hausmann test. And Hausmann test is for what? Hausmann test is for selection between the random effect and fixed effect GLS, because today we did the OLS and GLS. Then after that, what we did, we studied about some assumptions of the regressions. Alhamdulillah. About some regression of the assumption of the regression, like we studied about the
VIF command, about HET test command, about OV test command, about IM test command. And all these commands are for serial correlation, multicollinearity, heteroscedasticity, endogeneity, normality, and so on. So after that, what we studied, we installed the SSC install ASDOC, and then the installation was done in only for bringing the table on the Word document. So this is the whole story for the today. If you people are still facing any problem in Stata, you can have. However, your homework is that to study the assumptions of the regressions. What are the threshold values of the regression? मैंने आप लोगों को threshold values नहीं बताए, but you have the commands with you people. Today you will sit with you people and you will make your notes for it. आपके जो रिव्यू विंडो में जितने भी आप लोगों के कमांड चले हैं, आपका उस कमांड के थ्रू टेबल जनरेट हुए हैं, आप वो कमांड फॉरएवर अपने लिए लिख लें और उन कमांड के बेस पे आपने सारी एनालिसिस करनी है. दूसरा जो मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफिकली एमफिल के, एमएस के, वीकेंड के, तो उनके लिए ये जो असाइनमेंट है, दिस विल हैव 5 मार्क्स. और वो असाइनमेंट है कि you have to write 3 pages report on the assumptions of regressions with their commands. Already I gave you the command, I run the command for you people, but the assumption of regression, like what is multicollinearity, what is heteroscedasticity, what is endogeneity, what is serial correlation. So this is a assignment for you people. Up till now, if there is any question, you are open to ask, please. सर ये जो अभी हमने वर्किंग की है, ये सारी कमांड सेव रहेंगी या इसको सेव करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट? ये आप इस तरह करें कि थोड़ा सा, यस वेरी गुड, आप इसको सेव भी कर सकते हैं या फॉर एग्जांपल आप इसके अपनी नोट्स बना लें, 1 घंटा मजीद मेहनत कर लें. और यू वुड नॉट बिलीव कि जितने भी रजिस्टर है, ये मेरे पीएचडी का रजिस्टर अभी भी मेरे पास पड़ा है. ठीक है, दिस इज माय पीएचडी रजिस्टर. सो काइंडली अपने नोट्स बना लें इन चीज़ों के, ताकि कल आप सिर्फ एक नज़र इसको देखें और आप लोगों को बताएं. दिस इज़ द डिफरेंस. मैं अगर कहूँ ना कि अगर आप लोगों को ये चीज़ें आ गई तो यू कैन अर्न मनी एज वेल थ्रू इट, यू कैन डू द एनालिसिस, यू कैन टेक द प्रोजेक्ट्स. आप अपने काम के अलावा यू कैन हेल्प योर फ्रेंड्स, यू कैन हेल्प द कम्युनिटी, यू कैन हेल्प द सोसाइटी. बिसाइड दिस, इफ यू वांट टू अर्न, you can go to Fiverr websites, you can log in over there, you can have the freelancings, a lot of assignments of freelancing. People are writing over there, can someone collect the data for me? Then he says, can someone do the analysis for me? So nothing special, all these things are repeated. Either yahi cheeze you will study in Pakistan, and the same will be in US, in Australia, and everywhere. So go for this, search it, study it, make a notes, and share with your friends, share with your community, because most of the university students, they don't know the especially the methodology portion of the thesis. So you can have a lot of contribution in this sense as well. So what is my advice? Keep it with you, work on it. You have the Excel sheet, you have the Stata in your laptops. Whenever you have the time, it will take 10 minutes from you if you learn the commands, and then you spare the commands for other people as well. So what I thought that wish you good luck for you people, and if you have any question from me, I am in front of you, please. सर इसकी रिकॉर्डिंग काइंडली शेयर कर दें. इंशाल्लाह I will share the recording, इंशाल्लाह. सर मुझे ये स्लाइड्स भी चाहिए. सर ग्रुप में शेयर करेंगे ना हमारे वाले. Let me download the recording first. Why you people, I gave you a very detailed everything, and Yes, this is what I gave you. If I want to share all these things with people, then there was no need of slides, there was no need of video. Okay, so you should prepare the notes. Excuse me, sir. Yes.
सर इसको YouTube पे अपलोड कर देंगे। वो करूंगा मैं, वो करूंगा, लेकिन मेरा अपने मकसद ये चैनल है पे। कि आप लोग खुद कर ले, अल्लाह के बंदो, खुद नहीं किया। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। Anyone else? Hello? No, sir. Thank you. Thank you, sir. Welcome, welcome. Anyone else? Anything? Thank you, sir. Very informative session. Welcome, welcome. Thank you, sir. Welcome. Please practice this on. Okay, our next session will be not today. Don't scared. Our next session will be about the data stream and about the EndNote, about the Mendeley, and about the citations. How you will do the citations? Okay. So Okay, sir. 1, 2, 3, 4. These 4 other things are very important. How you will do the citation through Mendeley and EndNote and the data stream. These 4 sections are very much important, and inshallah we will do this very soon as well. Till that, Allah Hafiz, and thank you so much for joining me. And if you have Allah any Hafiz, sir. Allah questions, Hafiz. you are open to Allah ask. Hafiz, sir. Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Okay, sir. Allah Hafiz. Jazakallah. Assalamu alaikum.